Water is life. We all need clean water to live, to grow crops, to thrive. But there just isn't enough water or land to feed our hungry world. Unless we change the way we grow food. That's why millions of farmers are turning to Jain. Jain is totally integrated, totally innovative. Farmers helping farmers. The company logo reflects our holistic cycle of shared values. The sun, source of free renewable energy. Enhanced crops thanks to tissue culture plants and improved inputs. Water used sparingly and intelligently. The land protected and used wisely to deliver more. Jain has become a worldwide force in irrigation technology, the agri-value chain, and green energy solutions. Headquartered in Jalgaon, India, in just 2 generations, the company that started with 7,000 rupees has become a $1 billion organization, the world leader in agrotechnology. Jain starts with detailed 3D designs and provides the widest range of irrigation products and solutions. In this remote part of the world where there is no electricity, Jain's solar-powered pumps provide on-demand irrigation through a variety of Jain pipes to irrigate the roots of plants produced in Jain's own fields and greenhouses. We pioneered the use of drip tapes for row crops with the innovative Chapin tape. Thanks to our micro-irrigation systems and close work with farmers, we help them grow better produce that sells for more. We have even created a breakthrough technique to grow rice with drip irrigation. The result, better yields and better quality. Israel is known for bringing advanced irrigation to the world, and Nandan Jain led the way with integral drip line and sprinklers. Jain, total integration, total technological innovation, whether you farm 1 or 100,000 acres. No one offers a greater variety of products than Jain. On 5 continents, Jain is transforming the lives of farmers. Millions of farmers, 10,500 associates, more than 1,000 agro-specialists, 30 production plants, sales in 116 countries, 7,000 dealers and distributors, global leaders in micro-irrigation, mangrove processing, tissue culture plantlets, pioneers in solar agri-pumping, producing 40,000 kilometers of drip tube every day, with annual revenues exceeding $1 billion and revenue growth of 1,400% in just 10 years. Why is Jain different? We are a global company that built our business on results, trust, constant innovation, and total integration. We are financially strong, enjoying steady, sustainable growth. We believe that you need to leave the world a better place than you found it. We believe in sustainability. We invest heavily in our people, our partners, and critically, our farmers. Food and energy security is tied to water security. But with today's technology, no one should ever go hungry. And every farmer, no matter how small or large, can produce more crop per drop. There is no need to fight wars over water, because if used wisely, we can make it last. Water is life, and at Jain, we are dedicated to improving life everywhere for everyone, now and in the future. नमस्कार किसान भाइयों को राम राम। आज हम इस विषम परिस्थिति में, जो कि आज हमारा ही नहीं पूरे विश्व में कोविड-19 का जो महामारी का जो प्रकोप हुआ है, ऐसी विषम परिस्थिति में हम ये जो वेबिनार करने जा रहे हैं, प्रिसीजन फार्मिंग ऑफ सोयाबीन, मतलब परिमित खेती सोयाबीन की। ऐसी परिस्थितियों में भी हमें अपने आप को सुरक्षित रख के, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करके, हमारे किसान भाई जो मैं ग्रामीण क्षेत्रों में देखता हूं कि उन्होंने अपनी पिछली फसल 90% से 95% तक फसल
का कटाई कर चुके हैं, उसे खलिहान में पहुंचा चुके हैं। लेकिन आज हम इसी वेबिनार में सोयाबीन के बारे में बात करेंगे। किसान भाई, सोयाबीन जिसका कि वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, ये लेगुमिनेसी कुल का ये सोयाबीन जो कि तिलहन और दलहन दोनों है। इसमें तेल 20% एवं प्रोटीन 44%। सोयाबीन खरीफ मौसम की मध्य प्रदेश की सबसे मुख्य फसल है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रकबा सोयाबीन फसल का है, जो कि करीब करीब लगभग 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन होता है। और इसमें से जो हमारा मालवा क्षेत्र है, मालवा पठार है, जैसे इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है, ये जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, इसमें 22 से 25 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती हो रही है। और लेकिन इसका जो उत्पादकता है वो 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही है। कारण उसका क्या है? इसके बहुत से कारण है। पहला कारण यह है कि सोयाबीन जो है वो वर्षा पर आधारित फसल है। दूसरी, ये जितना उसके अंदर नमी होना चाहिए वो नमी उसको मिल नहीं पाती है, या तो नमी ज्यादा हो जाती है किसान भाई, या नमी बिल्कुल नहीं रहती। दूसरा, जो उन्नतशील प्रजातियों का आज भी अभाव है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्था इंदौर की तरफ से कई प्रजातियां उन लोगों ने विकसित की है। उसके ऊपर हर पहलू के ऊपर आज काम हो रहा है, जैसे एनआरसी 7, एनआरसी 1। लेकिन उसके बाद भी हमें और भी प्रजातियां विकसित करने की आवश्यकता है। उसके बाद संबंधित पोषण प्रबंधन, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसकी भी कमी है। और आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, संबंधित कीट एवं व्याधि प्रबंधन, जिसमें हम 3 चीज की करते हैं। पहली तो सुरक्षा की दृष्टि से, और उसे हम कई चीजों को उसे छोड़ना पड़ता है। और तीसरा, जिसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग। आखिरी है जो हम उन्नत तकनीक है, जिस तकनीक को हमें अपनाना चाहिए, खेत की तैयारी, बीजोपचार, लगाने का तरीका, सिंचाई की पद्धति, पोषण प्रबंधन, ये जो तकनीक अपनाना चाहिए, मतलब प्रयोगशाला से खेतों तक और खेत से प्रयोगशाला तक, जो कुछ ये प्रयोगशाला में हो रहा है उसका विस्तार कार्य हमें और बढ़ाना होगा किसानों तक, जब हम जाके इस फसल को एक व्यवसायिक फसल के रूप में आने वाले समय में कर पाएंगे। किसान भाई, पहले हमें क्या करना होगा? आज हमारी जो पिछली फसल है, पिछली फसल निकलने के बाद सबसे पहले फसल के जो अवशेष हैं खेत में, उनको पहले बाहर करना होगा, उन्हें जला देना होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? गहरी जुताई करेंगे। गहरी जुताई करेंगे और उसके बाद जहां पर पानी का अच्छा निकास हो वो निकास करेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो हम उसमें पोषण प्रबंधन करेंगे वो मिट्टी परीक्षण के आधार पर हो। जो हमारे को मिट्टी स्वास्थ्य पत्रक मिलता है उसके आधार पर हम उसकी मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का निर्धारण करेंगे। इसी को हम कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग, जिसके जो हमने बिंदु दिए हुए हैं। तो पहला बिंदु यही है कि हमें जो उसके लिए पोषण निर्धारण करना है वो मिट्टी परीक्षण के आधार पर करेंगे। और उसकी जो द्वितीय पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। और दूसरा है जो मैंने आपको अभी बताया कि गहरी जुताई जो है वो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में हमें गहरी जुताई 9 से 12 इंच से 18 इंच के तक हमको मोल्ड बॉल प्लो की सहायता से उसकी हमें गहरी जुताई करना आवश्यक होगा। और तीसरा जो परिमित खेती है या प्रिसीजन फार्मिंग, जो तीसरा बिंदु है वो है इसमें पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। जिससे कि पानी का निकास अच्छा होगा तो जमीन की जो संरचना है, जिसको हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। देखिए किसान भाई, टेक्सचर तो ऐसा ही रहता है, जो उसकी साइज होती है, मिट्टी की जो साइज होती है, जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले, इसको तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन किसान भाई, मिट्टी की जो संरचना है जिसमें कि हवा का आदान प्रदान अच्छा हो, वो तो हम आराम से अच्छी तरह से कर सकते हैं। वही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो
तीसरा जो बिंदु आता है वो है प्रजाति का चुनाव। अब मध्य प्रदेश के लिए के जो उन्नत प्रजातियां हैं, बड़े दाने वाली, मध्यम आकार के दाने वाली। अब बड़े दाने वाली वैरायटियों में जो प्रजातियां हैं उनके अंदर JS 335, बड़े दाने वाली में जो है JS 9560, NRC 7, NRC 37, और सबसे जल्दी पकने वाली जो प्रजाति है वह JS 9305। किसान भाई, JS का मतलब जवाहर सोयाबीन। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को हमें कृतज्ञ मानना चाहिए कि उन्होंने सोयाबीन में सबसे ज्यादा अनुसंधान कार्य किया है। और अभी वर्तमान में ये जितनी भी प्रजातियां हैं ये हमारे मालवा पठार के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त थे, क्योंकि मालवा में 20 से 25 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन का उत्पादन होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना आंचलिक कृषि केंद्र सीहोर, जहां पर की वर्तमान में जो प्रजातियां हैं उनमें अपनी RVS 24, RVS 18, RVS 1-4, अगर इन प्रजातियों को हम उन्नत पद्धति से करते हैं तो निश्चित रूप से सोयाबीन का उत्पादन जो तकनीक के बगैर आ रहा है उससे 50% उत्पादन अधिक आएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सोयाबीन वर्षा पर आधारित फसल है किसान भाई, लेकिन उसके बाद भी अगर हम, मेरे जो किसान भाई लोग इसको देख रहे हैं, मैं उनसे यही विनती करूंगा कि वे कम से कम एक एक बीघे में, मैं नहीं कहता कि आप 50-50 बीघे में करिए, एक एक बीघे में आप अच्छी प्रजाति का चुनाव करिए। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि गहरी जुताई करें, अच्छी प्रजाति का चुनाव करें। बीज उपचार करने के पहले अब हमें क्या, हमको बीज अच्छा मिल गया, अब बीज अच्छा होने के बाद उसका उपचारण भी जरूरी है। किसान भाई, जैसे हम एक छोटे से बच्चे को हर तरह का टीका लगवाते हैं, BCG का, DPT का, उसी प्रकार हमारा जो बीज है इस बीज को भी टीका लगाना बहुत जरूरी है। काय का टीका लगाएं? मैनकोजेब, कार्बनडाजिम, कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फफूंदनाशक 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। लेकिन किसान भाई, पिछले कई वर्षों से मैनकोजेब और कार्बनडाजिम का उपयोग होता आ रहा है, लेकिन अब हमें जो उच्चारण करना है वो करना है कार्बोक्सिन 75% WP। ये अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है, इससे हमको उपचारित उसका करना, कैसे करना है? 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। क्या करना है किसान भाई? एक तिरपाल के ऊपर हम सोयाबीन के बीजों को बिछा लें। बिछाने के पश्चात हम एक 15 लीटर की जो हाथ वाली टंकी है उसमें हम 2 ग्राम, 1 लीटर मतलब 15 लीटर पानी में हम उसको 30 ग्राम लेकर के उसका छिड़काव कर दें। करीब 1 घंटे के उसको छायादार जगह पे सुखा लें, उसके बाद हम उसकी बोनी कर दें। बहुत आसान तरीका है, क्योंकि हर किसान के पास सीड ड्रेसर मिलना जरूरी नहीं है। तो ये जो तरीका है ये काफी आसान तरीका है। किसान भाई, अगर हमें, ये तो हो गया हमारा रासायनिक पहलू, अब दूसरा पहलू हमारा जैविक पहलू। अब ये अच्छी तरह मालूम है कि सोयाबीन एक तिलहन फसल भी है। सोयाबीन की जो गांठ होती है, सोयाबीन या कोई भी दलहन फसल, सोयाबीन दलहन है, उसमें 44% प्रोटीन है। अब इसमें जो दलहन फसल है उनमें 21 दिन के बाद ये अपनी गांठें बनाता है और वायुमंडल से सीधे सीधे नत्रजन को स्थापित करता है। अब राइजोबियम जैपोनिकम और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, अब सोयाबीन को नत्रजन की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह नत्रजन खुद स्थापित करता है। इसीलिए बोलते ना, अगर हम सोयाबीन को किसी फसल के साथ अंतर्वर्ती फसल के रूप में लेते हैं तो ये निश्चित रूप से नत्रजन को जमीन में बढ़ाएगा। लगाने के पहले मिट्टी परीक्षण करें, लगाने के बाद करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितना नत्रजन इसके कारण जमीन में बढ़ा है। लेकिन इन गांठों की सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए राइजोबियम जैपोनिकम और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया 10 किलो प्रति 250 ग्राम बीज से उपचारित करना लाभदायक होगा। एक और बात मैं बताना चाहूंगा किसान भाई, हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व में जो मॉलिब्डेनम नाम का एक तत्व है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत अच्छी मदद करता है। ये सीहोर आंचलिक अनुसंधान केंद्र में दूसरे जो तिलहन
फसल है, दलहन फसल है, जैसे हमारी चना है, मूंग है, उड़द है, इन सभी में इसके ऊपर कार्य हुआ है। तो सोयाबीन में भी अगर हम मॉलिब्डेनम से अगर हम इसका बीजोपचारण करते हैं, जो कि हमें 1 ग्राम इसमें मॉलिब्डेनम में अगर हम मिला देते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट, तो निश्चित रूप से ये समझिए कि हम जो उपचारित किया हुआ सोयाबीन है वो और बगैर उपचारण किया हुआ सोयाबीन, इन दोनों में बहुत हमें फर्क नजर आएगा, क्योंकि 21 दिन के पहले पहले तो हमें नाइट्रोजन इसको देना ही पड़ेगा, जो हम खाद के रूप में देते हैं, जिसकी बात आगे हम करेंगे। जैसे हमारे डीएपी है, 12-32-16 है, इनमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो मात्रा 21 दिन के लिए पर्याप्त होती है। उसके बाद जितने दलहन फसलें हैं ये नाइट्रोजन जो है वो अपने आप बना लेती है। लेकिन क्या हुआ दूसरे तत्वों का, जैसे हमारा फास्फोरस है, इसीलिए हम पीएच भी देते हैं, पोटैश है, उसके बाद द्वितीय पोषक तत्व है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। तो मैग्नीशियम जो है इसकी इसको सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं किसान भाई, ये जिस सिंचाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, टपक सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, सबसे बड़ा सवाल हमारा ये उठता है कि क्या सोयाबीन की फसल में हम ये सिंचाई पद्धति लगाना कारगर होगा? बिल्कुल होगा। पिछले वर्ष मेरे जो किसान हैं, जानापाव कुटी के दिलीप शालिग्राम पाटीदार, जिनको मैंने बोला कि दिलीप भाई आप सोयाबीन ड्रिप से लगाइए। हाँ यार साहब, कोशिश तो करूंगा। तो उन्होंने 10 एकड़ में सोयाबीन ड्रिप से लगाया, रेज बेड बनाया। उसके बारे में आप जो हमारे आने वाले उसमें जो स्लाइड्स है उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने किया है। अब आप देखेंगे, अब किसान भाई ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई, किसान कहते हैं कि मेरे पास तो पानी बहुत है, मैं क्यों लगाऊं? पानी ज्यादा हो या कम हो या वर्षा आधारित फसल हो, इसमें भी ड्रिप सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सोयाबीन की 2 क्रांतिक अवस्थाएं, एक क्रांतिक अवस्था फूल और दूसरी क्रांतिक अवस्था फली निकलने का समय। किसान ने जो ड्रिप सिंचाई का हमने रेखांकन बताया है, उसमें जो कतार से कतार की दूरी है वो 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर। पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर या ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 सेंटीमीटर। 16 मिलीमीटर की 4 लीटर का प्रभाव या 2.5 लीटर से 4 लीटर का प्रभाव, और कतार से कतार की पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर। अब ड्रिप का पानी कहां जाता है? जड़ों में धीरे धीरे लंबे समय तक एक नमी का क्षेत्र बना के रखता है। और जो फव्वारा है, स्प्रिंकलर सिंचाई, किसान भाई रेस बेड बनाए, 90 सेंटीमीटर चौड़ा, जमीन से 40 सेंटीमीटर ऊंचा, और उसके बीच में वो स्प्रिंकलर सिंचाई लगाए। छोटा फव्वारा, बड़ा फव्वारा नहीं, छोटा फव्वारा। हमारे पास मिनी स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर लगाए, और मिनी स्प्रिंकलर लगाने से उसे जो पानी है वो सूक्ष्म बूंद बनकर जब पत्ती का स्टोमेटा खुलता है उसमें से वो पानी पौधों के अंदर उतरता है। जितना कारगर ड्रिप है उतना ही कारगर फव्वारा सिंचाई। ये किसान की सुविधा के ऊपर। अगर वो ड्रिप सिंचाई से पानी दे सकता है, पोषण दे सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो ड्रिप सिंचाई लगाए, फव्वारा सिंचाई लगाए। हमारे टपक अभियंता मध्य प्रदेश में है, जिस जिस क्षेत्र में है, तो वो आकर के पूरा सर्वे करेंगे, कोटेशन बनाएंगे, किसान को देंगे। तो किसान भाई ने हिम्मत करना है कि मुझे कम से कम एक एक बीघे में ये तकनीक अपनाना है। ठीक है, सोयाबीन के बाद जो अगली फसल आएगी उसकी आलू आएगा, तो आलू में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में और विस्तृत जानकारी आगे देखेंगे। अब आता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, पोषण की आवश्यकता। हमने किसान भाई आपको ये बताया कि पोषण का प्रबंधन या पोषण की जो उसकी आवश्यकता है उसको हम मिट्टी परीक्षण के आधार पर करेंगे। मिट्टी परीक्षण जब किया गया उसमें क्या क्या पाया गया? मिट्टी में हम ये देखते हैं कि मिट्टी का पीएच मान कितना है। मिट्टी, हमारी जो मिट्टी है वो अत्यधिक अम्लीय है कि अत्यधिक क्षारीय है। सोयाबीन के लिए अम्ल भी नहीं ज्यादा होना चाहिए और क्षार भी नहीं होना चाहिए।
अगर क्षार ज्यादा है, 8 से ऊपर उसका पीएच मान है, तो हम उसमें जिप्सम का उपयोग करते हैं। 100 से 200 किलो प्रति एकड़ के मान से हम जिप्सम कैल्शियम सल्फेट उसमें डालते हैं। अगर पीएच मान ज्यादा है तो हम एक साल क्या करते हैं, खेत के चारों ओर हम ढेंचा लगाते हैं। ढेंचा या संड, ये क्या करती है, हरी खाद का काम करती है। अगर हमने इसको खेत के चारों ओर लगा दिया तो ये मान के चलिए कि जमीन का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 या 7 का जो पीएच है वो हमारे लिए काफी उपयुक्त माना। अब किसान भाई हम बात करते हैं कि हमें अच्छे उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए, 20 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो फास्फोरस और 20 से 30 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा अनुशंसित की गई है। लेकिन इसमें भी जो हमको संशोधन करना है वो मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना है। जब हमने इसके ऊपर से इबारत निकाली तो देखेंगे कि यूरिया 44 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 375 से 400 किलो और पोटाश जो है वो 67 से 83 किलो प्रति हेक्टेयर हमको उपयोग करना है। ये तो हो गया सिंगल में। अगर हम डीएपी का उपयोग करते हैं तो उसकी अनुशंसा, अगर हम मिक्स फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उस हिसाब से हम, अगर हम डीएपी लेते हैं तो ये हम लेंगे 100 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 67 से 83 किलो और जिप्सम जो है 150 से 200 किलो। अगर हम 12-32-16 लेते हैं तो इसमें हमको 200 किलो प्रति हेक्टेयर, अगर हम मिक्स फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो 200 किलो, अगर हम डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो वो 130 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग। अब किसान भाई हमने जो मुख्य पोषक तत्व वो तो डाल दिया, अब हमें आवश्यकता किसकी है, द्वितीय पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम की इतनी आवश्यकता सोयाबीन को नहीं होती है, लेकिन जो मैग्नीशियम है उसकी आवश्यकता सोयाबीन को पड़ती। क्यों पड़ती है, क्योंकि सोयाबीन खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसल है और इस समय हमेशा मौसम कसा हुआ रहता है, बादल हमेशा घिरे हुए रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्रियान्वयन करने के लिए मैग्नीशियम का पर्णीय छिड़काव हमें करना चाहिए। वो लेना चाहिए हमको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लेकर के हम मैग्नीशियम का छिड़काव फसलों पर करेंगे। हमेशा मैग्नीशियम के लक्षण हमें पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते और गंधक के लक्षण हमें हमेशा नई पत्तियों पर दिखाई देते। तो हमें जो गंधक है, जो सल्फर है, वो भी सोयाबीन की अनुशंसा की गई। एक और जो तत्व है वो है जिंक। किसान भाई हमारे मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है उसमें जिंक की कमी है, इसीलिए हमें आवश्यकता रूप से हमें 25 किलो जिंक प्रति हेक्टेयर के मान से डालना चाहिए। किसान भाई खेत की तैयारी हम जब करेंगे जब 10 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए, जब अंतिम बार हम बखरनी करेंगे उस समय पका का खाद हम डाल सकते हैं 10 टन, या हम नारेट फास्फेट कंपोस्ट जो है वो हम 20 से 25 क्विंटल डाल सकते हैं, या हमें जो है दूसरी जो वर्मी कंपोस्ट है वो वर्मी कंपोस्ट हम इसमें 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से केचुआ खाद। लेकिन किसान ध्यान रहे कि जब भी हम केचुआ खाद डालेंगे उसके साथ किसी भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं कर। दूसरा काम एक कर सकते हैं, जो हम पका हुआ गोबर का खाद डालेंगे वो पके हुए गोबर की खाद की जो 1 टन है उसको हम उपचारित भी कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, इनसे हम उसको उपचारण भी कर सकते हैं और उसमें फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए माइकोराइजा भी हम 10 किलो उस 1 टन गोबर में मिला सकते हैं। लगाना कब सोयाबीन, किसान भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लगाना कब है। सोयाबीन 15 जून से लगा करके 15 जुलाई तक में लगाना। लेकिन ध्यान रहे किसान भाई जो बीज की मात्रा है अगर हमें 4 से 4.5 लाख पौध संख्या प्रति हेक्टेयर चाहिए तो हमें 60 किलो प्रति हेक्टेयर का बीज दर लेना है। क्या होता है ज्यादा बीज दर से, ज्यादा बीज दर से 2 बड़े नुकसान सोयाबीन में होते हैं। पहला नुकसान ये बांझपन होगा, ज्यादा पौधों की संख्या होगी तो फलियां तो बनेगी किसान भाई,
लेकिन फलियों के अंदर दाना ही नहीं होगा। और दूसरा, सोयाबीन का एक जो कीड़ा है सेमी लूपर, वो सेमी लूपर सोयाबीन के फूलों को खा जाता है। और अगर सोयाबीन के फूल ही खा गए तो किसान भाई आगे फली बनने का सवाल नहीं उठता है। इसलिए जो बीज दर है वो हमको औसतन बीज दर लेना है, और इन बीजों को हम जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे? क्यारियों में लगा करके हम उसको पेड़ के बीच में रख करके पानी डाल करके हम देखेंगे, और 5 दिन के बाद देखेंगे हम कितने बीज उगे हैं, कितने नहीं उगे हैं। ये हम खुद ही उसका आंकलन कर सकते हैं कि क्या ये बीज अंकुरित होने के लिए सही है कि नहीं है। अगर किसी कारणवश किसी साल मानसून देर से आता है तो उस समय हमें जो जुलाई तक, हम 15 जुलाई तक इसकी बोनी कर सकते हैं, लेकिन जो बीज दर है उसको उस समय हमको बढ़ा करके लेना पड़ेगा। तभी हम ये औसतन जो उसका पौध, जो हम पॉपुलेशन है या पौध संख्या है, जिससे कि हम उसका जो उत्पादन निर्धारित, जो उसका ईल्ड है या उसकी जो उपज है, वो किसान प्राप्त कर सके। और सबसे बड़ी बात उपज नहीं है, गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त। सोयाबीन को अंतर्वर्ती फसल के रूप में हम लगा सकते हैं। 4 लाइन 2 लाइन अरहर की, अगर हम मक्के की लगा तो 2 लाइन मक्के की। और सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो कि आप फलदार वृक्ष के बीच में भी लगा सकते हैं। आज किसान भाई नींबू लगाता है, और किसान भाई दूसरे फलदार लगाता है, तो उसको 3 साल के बाद वो फल मिले, उसके बीच में वो 2-2 लाइन सोयाबीन की लगा सकता है। क्योंकि सोयाबीन लगाने से किसान को नुकसान नहीं है। नुकसान कहाँ है? अगर एक ही फसल को लगातार 5 से 6 साल तक अगर एक ही खेत में लेते हैं तो सोयाबीन क्या करता है? सल्फर को खींच लेता है। अगर सल्फर जमीन में नहीं है तो जमीन कड़ी पड़ जाती है। इसीलिए हमें रासायनिक से ज्यादा जैविक खादों का उपयोग करना ज्यादा कारगर होगा। वीड कंट्रोल, सबसे ज्यादा हमारा कृषक परेशान है खरपतवार से। क्यों? क्योंकि 3 तरह का हम, एक तो हमारा भौतिक विधि हो गई, यांत्रिक विधि हो गई, और आखिरी में जो है वो रासायनिक विधि। भौतिक विधि क्या है? हम लोग क्या करते हैं? गहरी जुताई। जो गहरी जुताई करते हैं, इससे भी हम कुछ कुछ प्रतिशत हम उसमें खरपतवार को कम कर सकते हैं। यांत्रिक विधि दूसरा, निंदाई गुड़ाई। निंदाई गुड़ाई हमेशा संभव नहीं होती। क्यों नहीं होती है? जिस वर्ष बारिश ज्यादा होगी उस वर्ष हम निंदाई गुड़ाई संभव नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में हमें खरपतवार नाशक का उपयोग करना। 3 तरह के खरपतवार नाशक। खेत तैयार होने के बाद ध्यान रहे किसान भाई कि 10% 10 सेंटीमीटर बारिश होने के बाद ही खरपतवार नाशक का उपयोग करें, सूखी जमीन में ना करें, नहीं तो नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। तो हमें क्या करना है किसान भाई कि हम जो फ्लूक्लोरेलिन है, फ्लूक्लोरेलिन नाम का जो हमारा खरपतवार नाशक है, वो हम खेत की तैयारी करने के बाद डाल। उसके बाद हम फसल लगाने के बाद, बोनी करने के बाद, उगने से पहले हम उसमें पेंडमिथालिन नाम का जो खरपतवार नाशक है वो डालें। अब किसान भाई जो इनकी मात्रा कितनी है? अगर हम फ्लूक्लोरेलिन डालते हैं तो 2 से 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर। अगर हम पेंडामिथालिन का उपयोग करते हैं तो 2 लीटर प्रति हेक्टेयर। बोनी होके उगने के बाद जब सोयाबीन 10 से 12 दिन की, देखिए इसकी भी समय अवधि निश्चित है। हम चाहेंगे कि महीने भर की फसल हो जाए, अगर हम उसमें अगर खरपतवार नाशक पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। तो ये बात का ध्यान रखें किसान भाई, अगर हम इमिजिटापायर या क्विज़ुलोफॉप इथाइल, क्लोरीमिरॉन इथाइल अगर अपन उपयोग कर रहे हैं तो ये मान के चलिए इसे हमें सोयाबीन के 15 दिन की जब सोयाबीन हो जाए उस समय हमें इन खरपतवार नाशकों का उपयोग करना है। इमिजिटापायर ये सकरी पत्ती को मारेगा। हमारा जो क्विज़ुलोफॉप इथाइल है ये भी सकरी पत्ती को मारेगा, लेकिन बड़ी जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है, बड़ी दूधी है, छोटी दूधी, यूफोर्बिया एटा, यूफोर्बिया जेनिकुलेटा, ये जितने भी हमारी जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं,
इनको भी तो हमें नियंत्रित करना है। तो हम क्या करते हैं, क्यूजिलोफॉप इथाइल के साथ हम क्लोरीमिनॉन इथाइल जो है उसको मिला लेते हैं 36 ग्राम, और बाकी जो मात्रा हमारी क्यूजिलोफॉप इथाइल 1 लीटर की है, इन्हें हमें मिला लेते हैं। और मार्केट में, बाजार में ऐसा भी उत्पाद है जिसमें कि क्यूजिलोफॉप इथाइल और क्लोरीमिनॉन इथाइल दोनों ही सम्मिलित है, तो हमारी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों ही खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई, 2 चीज है, अगर हम सोयाबीन को रेस बेड पद्धति से लगाते हैं तो खरपतवार कम उगेगा, कीटबाजी का प्रकोप कम होगा, पानी का निकास अच्छा होगा। पिछले वर्ष जानापा कुटी में जो किसान ने सोयाबीन की फसल रेस बेड पे ली थी, बारिश बहुत हुई पिछले साल, लेकिन उस बारिश में भी उसने मुझे ये बताया कि मेरे यहाँ नुकसान दूसरे किसान की बनिस्बत कम हुआ, क्योंकि उसने तकनीक को अपनाया। मैं किसान भाइयों से यही विनती करूंगा, या उन्हीं से ये बताऊंगा कि जो भी मैदानी अमला वाले दूसरे कार्यकर्ता हैं, वे भी जाएं और हम भी जाएं। ये बोले कि आप एक एक बीघे में तकनीक को अपना, एक बीघे में आप रेस बेड से करिए, बाकी सब अपने तरीके से करिए। एक बीघे में आप ड्रिप सिंचाई लगाएं, छोटा छोटा फव्वारा लगाएं, तो निश्चित रूप से उसके उत्पादन का आंकलन करें, उसके उपज का आंकलन करें, उसकी गुणवत्ता का आंकलन करें। जब आपको लगे कि इसमें मेरी उत्पादन अच्छा आया, मेरी गुणवत्ता अच्छी बनी, सोयाबीन में दाने में चमक है, वजन है, सब कुछ है, तो हम अगले साल इसको अपने आप वो जो है उस तकनीक को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में अपनाने की कोशिश करेगा। किसान भाई, अब हमने पहले ही चर्चा की थी कि क्यों हमें फव्वारा सिंचाई या ड्रिप सिंचाई की जरूरत। सोयाबीन की जो मैंने पहले ही बताया था कि सोयाबीन की जो जड़ है वो जमीन में काफी गहरी जाती है, और ये जो है पानी के प्रति, अभी देखिए सोयाबीन में क्या होता है कि सोयाबीन में अगर ज्यादा पानी हो गया तो बीज सड़ने लगेगा, उसमें पीथियम है, डैम्पिंग ऑफ है जो होता है वो चालू हो जाएगा। डैम्पिंग ऑफ मतलब उगते ही सोयाबीन मर जाएगा, उगते ही सोयाबीन मरने लगे। अगर पानी नहीं है तो सोयाबीन क्या होगा, जमीन तिड़कने लगेगी, क्योंकि सोयाबीन सिर्फ और सिर्फ मध्यम काली मिट्टी में लगाने वाली फसल है। पत्थर वाली जमीन में लगा देंगे तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। अगर हमको इन सब समस्याओं से निजात पाना है तो हमें सोयाबीन में जर्मिनेशन, जब का अंकुरण होता है, बारिश हो गई तो बहुत अच्छी बात है, बारिश हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज्यादा बारिश हुई तो क्या करेंगे, तो हमको लगाने का तरीका बदलना। अब आप देखिए हमारे पास ड्रिप में कौन, एक तो हमारे पास चपटी वाली है, एक हमारे पास गोल वाली जिसको हम हाइड्रोगोल बोलते हैं, 16 मिलीमीटर की नरी LLDP, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, जो कि ना हमारी इस टाइप की हम लोगों ने लैटरल बनाई है, जो कि ना तो आपकी ठंड में तिड़केगी ना गर्मी में वो पिघलेगी। 15 साल तक हमारे पास है क्लास 2, क्लास 1 और जेन टर्बोस्लिंग, 3 तरह की हमारे पास नलियां हैं। ये तीनों तरह की नलियाओं में हमने कोई गुणवत्ता में आज तक समझौता नहीं किया। अगर किसान में ड्रिप सिंचाई नहीं लगा सकता है तो वो निश्चित रूप से छोटे फव्वारे पे जाए, जैसे 5022U, इस तरह की जो नानदान जेन इरिगेशन, हमने जो जलगांव में हम लोग जो अनुसंधान कार्य इस पर निरंतर करते जा रहे हैं कि कौन सी मिनी स्प्रिंकलर किस प्रकार की, और ड्रिप सिंचाई से मिनी स्प्रिंकलर की जो LPH है, ड्रिप का तो क्या है 1 लीटर, 2.5 लीटर, 4 लीटर, इस तरह की उसकी LPH, मतलब 1 घंटे में ये ड्रिपर कितना पानी देती है। और दूसरा आता है हमारे पास मिनी स्प्रिंकलर, जिसमें 320 लीटर से लगा करके 850 या 820, 920 लीटर तक की इसकी 1 घंटे में इतना पानी देता है, और पानी सूक्ष्म बूंद बनकर 30 सेंटीमीटर की परिधि में घूमता है। तो ये हमको ध्यान रखना किसान भाई कि हम कौन सा लगाएं। तो ये हमारा इंजीनियर निश्चित करता है कि वो आपके यहाँ पे किस तरह का पानी का स्रोत है, आपके पास ट्यूबवेल है, आपके पास कुआं है, पानी कितना है आपके पास, प्रेशर कितना है। अगर किसान भाई आपके पास 3 किलो का प्रेशर है, हालांकि सोयाबीन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम प्रेशर में भी सोयाबीन में हम पानी की पूर्ति कर सकते। तो किसान भाई मेरा यह कहना है कि आप पानी के प्रबंधन को भी उतना ही तवज्जो दें जितना हम सोयाबीन में बीज उपचार को लगाने का तरीका, खेत की तैयारी। लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सोयाबीन में भी पानी का हास होता है, अत्यधिक पानी हो जाए तो दिक्कत, कम पानी हो जाए तो है ही। तो इन दोनों के बीच का अगर हमें सामंजस्य बना के रखना है, कीटवादी का प्रकोप कम से कम होना है, तो मैं ये निवेदन करूंगा, कहना चाहूंगा
कि 1 बीघे में तो कम से कम हमारा कृषक पूरी तकनीक को अपनाते हुए ये काम, हम एग्रोनॉमिस्ट उनके यहाँ पहुंचेंगे, उनको सारी तरह की जानकारी देंगे, पानी का शेड्यूलिंग देंगे, खाद का। अब एक और बात है, पानी का शेड्यूलिंग कैसे ज्ञात करना? अब टेंशियोमीटर तो हर किसान लगा नहीं सकता, लेकिन हमारे पास एक और तरीका है, वो किसान को तरीको है। और कसो तरीको है ना, अपन खेत में गयो, पानी दियो, उका बाद में मिट्टी को लड्डू बनेगी, और लड्डू बनाने के बाद ना लड्डू ना फेंको ऊपर, पानी देने का 6 घंटा का बाद अगर लड्डू बिखरी गया तो जो पानी हम दे रहे हो बराबर है। अगर लड्डू बन ही नहीं रहा है तो पानी हमको देना है। मतलब सोयाबीन ने क्या किया, पानी का हाथ को खाया है, या कोई भी फसल ने खाया है। लेकिन आज हम बात जिस फसल की कर रहे हैं, ऐसी फसल में अगर हमने थोड़ा बहुत भी इन तकनीक को अपना लिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम एक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन दे पाए। अब आता है हमारा फर्टिगेशन। क्या होता है फर्टिगेशन? फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, मतलब जो घुलनशील खाद हम ड्रिप सिंचाई, और ड्रिप में कैसे देते हैं इसको, वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक। अगर हमारे पास छोटा रकबा है तो हम वेंचुरी उपयोग करें, बड़े रकबे हैं तो हम फर्टिलाइजर टैंक का उपयोग करें। किसान भाई, अगर हमारे पास वेंचुरी है तो वेंचुरी कौन इंच की भी है, वेंचुरी 2 इंच की, हमारा इंजीनियर उसको निश्चित करता है कि कौन सी वेंचुरी हमारे किसान को देना है। कोई भी घुलनशील खाद देखिए, अब उसमें भी एक बात है कि सोयाबीन में हम ऐसी कोई भी खाद ना दे जो पानी में घुलती नहीं हो। 12-32-16 DAP 14-35-14 20-20-0 ये खाद ड्रिप से नहीं देना है। ऐसी खाद का उपयोग करें जो कि पानी में घुल जाती हो। अब यूरिया भी क्या है, 2 तरह का यूरिया, एक बारीक वाला यूरिया और एक हमारा मोटा वाला। किसान भाई, हमें ऐसे यूरिया का उपयोग करना है जो कि पानी में घुल जाती हो। और यूरिया क्या है, इसको सबसे बाद में घुलना। यूरिया पोटाश 20 दिन के बाद। अब मैंने एक बात और आपको बताई थी कि सोयाबीन दलहन फसल है, इसमें हमें नत्रजन बहुत संभल कर देना है। आवश्यकता है, अगर सोयाबीन अच्छी ग्रोथ कर रही है तो हमें इसे कम करना पड़ेगा। 20 दिन के बाद हमें यूरिया पोटाश, 50 दिन के बाद हमें फिर यूरिया पोटाश, और 70 दिन के बाद हमें मात्रा जो इसमें अनुशंसित की गई है वो देना है। हम बेसल डोज में दे चुके हैं, 25% खाद बेसल डोज में दे चुके हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, और भी जो ग्रेड है, जैसे वृद्धि अवस्था में 19-19-19, सोयाबीन में जब फूल आए तो 0-52-34, पोटेशियम फास्फेट 12-61-0, मोनो अमोनियम फास्फेट। मोनो अमोनियम मतलब जिसमें 12 नाइट्रोजन और 61 फास्फोरस। सोयाबीन को क्या चाहिए, जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो, पोटाश की मात्रा मध्यम हो। फसल को शुरुआत में 70 से 80% नाइट्रोजन, बीज की अवस्था में ठीक उसका उल्टा उल्टा फास्फोरस की आवश्यकता। बाकी फसलों में प्रारंभिक अवस्था, सापना अवस्था, गांठ अवस्था, सोयाबीन में भी यही है, प्रारंभिक अवस्था, फिर फूल की अवस्था, और फूल से फली बननी। इस बात का ध्यान हमको रखना है। हम इसमें परणी छिड़काव भी कर सकते हैं, जैसे 19-19-19 का वृद्धि अवस्था में, फूल की अवस्था में 62-00-52-34, और इसके बीच में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे हमने में मौसम कस गया है तो किसान में क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम सल्फेट चिलेटेड EDTA चिलेटेड रूप में जो मैग्नीशियम आता है वो हम इसमें 20 ग्राम प्रति टंकी में लेकर के छिड़काव करेंगे तो हमको उसमें पीलापन नहीं आएगा। अभी हम आगे बात करेंगे कि पीलेपन सोयाबीन में किस चीजों से आता है, मौसम कसने से आता है, अत्यधिक पानी हो जाए तो आता है। ये सब समस्या ड्रिप और फव्वारा सिंचाई में नहीं आने, अगर आई भी तो कम आनी है। इसीलिए हम बार बार कृषकों को कह रहे हैं कि हमें इन तकनीक को अपनाना अति आवश्यक है, अंतर्वर्ती फसलों को अपनाना अति आवश्यक है। अगर हम ये अपनाना शुरू कर देंगे, अंतर्वर्ती फसलें लगाएंगे, अरहर लगाएंगे, मक्का लगाएंगे, और इनमें हम टपक सिंचाई लगाएंगे, रेस बेड से करेंगे, तो हमको एक फसल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उसमें फसल बीमा भी किसान का निश्चित होगा। अब ये बात करें फर्टिगेशन। फर्टिगेशन कैसे करना, पहले हम पानी देंगे, उसके बाद हम खाद देंगे, और खाद के बाद फिर पानी नहीं देंगे। इन बातों की, छोटी छोटी बातों का कृषकों ने या हमारे जो भी अमला कार्यकर्ता है उन्हें इस बात का ध्यान रखना है। अब है सिंचाई की आवश्यकता। अब सिंचाई हमको कितनी देना है, रोपावस्था में 15 से 20 मिनट,
शाखा बनने की अवस्था में 30 से 35 मिनट, फूल बनने की अवस्था में 45 से 50 मिनट और दाना भरने की अवस्था में हमें 75 से 65 से 75 मिनट। फव्वारा सिंचाई में इसी तरह से करना है। अब जिनके पास छोटा फव्वारा है वो लोग 8-8 दिन में 8 घंटे तक पानी चलाते, उसका कोई भी सदुपयोग नहीं होगा। ये ऐसी सिंचाइयां हैं जो कि जड़ क्षेत्र में जाकर के एक वापसा, महाराष्ट्र में इसको वापसा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नमी क्षेत्र। नमी क्षेत्र फील्ड कैपेसिटी बनी होना चाहिए, तभी ये जो हम तकनीक अपना रहे हैं ड्रिप सिंचाई की, फव्वारा सिंचाई की, तभी कारगर होगा जब हम इन तकनीक को अच्छी तरह से अपना पाएंगे। तो हमें इन तालिका को देखना है कि वो कितनी कितनी देर तक पानी देना है। ठीक है, वर्षा आधारित फसल है, कभी बहुत बारिश हो गई तो भी एक बात का ध्यान है, ये तो सोयाबीन हम दूसरी फसलों में किसान से कहते हैं, भले ही बारिश आए पर भी 5 मिनट ड्रिप चलाना चाहिए ड्रिप 5 मिनट तो भी चलाना। जो बूंद बूंद करके जो पानी जाता है उसके साथ जो पोषण जाता है उससे वो बराबर भागों में पौधे की अलग अलग भाग को हिल जाता है। अब आता है सोयाबीन में पौध संरक्षण उतना ही जरूरी है जितना कि पानी को हमने संरक्षित किया, पोषण को हमने संरक्षित किया। अब हम आते हैं कीट व्याधि, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। पेस्ट मतलब पेस्ट में सब आ जाते, इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट है, पेस्ट में इंसेक्ट भी आ गया, खरपतवार भी आ गया और बीमारी भी आ गया। अब सोयाबीन में जो मुख्य कीट लगता है वो है एक तो ब्लू बीटल, दूसरा है सेमी लूपर, तीसरा है गडल बीटल और चौथा है तमाकू की इल्ली स्पोडोप्टेरा लेट्यूरा। लेकिन किस वर्ष ये ज्यादा आता है, चक्रभृंग, सेमी ब्लू या आपका गडल बीटल। सेमी लूपर मैंने आपको बताया था, सेमी लूपर उस कंडीशन में आता है, आएगा, लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा पौध संख्या हो गई, बहुत ज्यादा फूल आ गए, तो जो सेमी लूपर है फूल को खाता है। ब्लू बीटल नीचे से तने को काटता है, पत्ती को भी काटता है। गर्डल बीटल तने के बीच में घुस करके चक्र भ्रूण बनाता है, उसकी पूरी जीवन चक्र उसके अंदर ही चलता है, तने के अंदर चलता है, तने में ही वो अंडा देता है, उसी में से उसकी मैगट बाहर आती है और वो नीम जो है वो पूरा नुकसान करता रहता है। और दूसरा जो एक टुबैको कैटरपिलर है, जिस वर्ष में ज्यादा बारिश होती है, जब सोयाबीन में फलियां भरने लगती है, उस समय ये कीड़ा आता है टुबैको कैटरपिलर। अब इनके लिए अलग अलग दवाइयां हैं, अलग अलग इसका प्रबंधन। रासायनिक को सबसे आखिरी में रखिए, हमको क्या क्या करना है वो हम अगली स्लाइड में। अब इनको प्रबंधन कैसे करना, हमको इन्हें मारना नहीं है, इनको प्रबंधन करना। पहला प्रबंधन, गहरी जुताई करें। गहरी जुताई अगर करेंगे तो जो प्यूपा जो जमीन में पड़ा है सुप्तावस्था में, वो गर्मी के संपर्क में आएगा और वो नष्ट होगा। सोयाबीन की ऐसी प्रजातियों का उपयोग करें जो की प्रतिरोधक क्षमता इन कीड़े के प्रति अच्छी हो। ऐसी प्रजाति जो जैसे 9560, RVS 34, RVS 18, RVS 1-4। दूसरा, लाइट ट्रैप लगाएं। अब किसान भाई, लाइट ट्रैप हर एक के बस की नहीं है। अगर हम लाइट ट्रैप लगाते हैं तो हम कुछ नहीं करना, अगर हमारे पास तसला है उसमें घासलेट भर दें, एक लाइट ऊपर से लगा दें, तो जो कीड़े हैं जैसे टुबैको कैटरपिलर होगा तो उसकी जो तितली है वो रात को आएगी, उस तसले में गिर जाएगी। अगर हमने 50 तितलियों को पकड़ लिया तो निश्चित रूप से हम 12,000 अंडों को नष्ट कर पाएंगे। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ये हमको छोड़ना है, एनपीवी। ये एक्सेल इंडस्ट्री जो है एनपीवी बनाती है, तो वो हम एनपीवी छोड़े तो एनपीवी क्या करता है, परजीवी बनकर इनको खाता रहता है और वो उसको अगली अवस्था में जाने नहीं देता। दूसरा, नीम तेल का उपयोग। अभी सफेद मच्छर का प्रकोप हो गया, तो हो या ना हो, नीम तेल का अजाडायरेक्टिन जिसको हम बोलते हैं 350 ppm 75 ml प्रति टंकी के हिसाब से उसका छिड़काव करें। सोयाबीन को हमको दूसरी जो फसलें हैं जैसे लाल तुअर है, मक्का है, इनके साथ हमें इसको लगाना जरूरी हो जाता है, जिससे कि हमारे पास एक फसल बीमा हो जाता है, क्योंकि इसका कीट उसमें नहीं आएगा, इसीलिए हमें अंतर्वर्ती फसल के रूप में। और दूसरा, खेत के चारों ओर हम ढेंचा और सन लगा दें। अब ये देखिए, ये है गडल बिटल। ये गडल बिटल पूरा तने के अंदर इसकी जीवन चक्र चलता है, अंडा भी यही देगा, उसका मैकेट भी बाहर आएगा, उसका नींव तैयार होगा। क्योंकि इसमें क्या है कि सिर्फ अंडा, अंडे में से तितली ने अंडा दिया, अंडे में से वैसक ये निकला, ये वैसक हुआ, फिर मतलब इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सेमी लूपर, सेमी लूपर में सिर्फ इल्ली ही जिम्मेदार होती है, मटक कर चलती है इल्ली। ये सबसे खतरनाक इल्ली है सोयाबीन की, क्योंकि ये फूल को खा जाती है और फूलों को खाएगी तो निश्चित रूप से जितने फूल कम होंगे उतना ही उत्पादन गिरता चला है। ये है टुबैको कैटरपिलर।
स्पोडोप्टेरा लेटूरा। ये टोबैको कैटरपिलर क्या है? ये किसी एक एक फसल में नहीं लगता है, ये टोबैको में भी लगता है। इसका जीवन चक्र जो है साल में ये 3 से 4 बार अपना जीवन चक्र पूरा करता है। ये है ब्लू बीटल। ये ब्लू बीटल सोयाबीन में शुरुआत में लग जाता है। ये शुरुआत में जब सोयाबीन हम लगाते हैं उसके 20 दिन के, जब गडल बीटल जो शुरू होता है वो 30 दिन के बाद। लेकिन ये जो ब्लू बीटल है ये शुरुआत में उसके तने को नीचे से काटता रहता है, पत्ती के ऊपर आ जाएगा, इसका भी नियंत्रण करना जरूरी है। अभी देखिए, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हमें उपयोग तो करना है, लेकिन हमें गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब हमें अच्छी जो हम लोग जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अच्छी खेती की जो तकनीक है उसको अपना के करना है। क्वारंटाइन को हमें फॉलो करना है और फसल को हमें आर्थिक नुकसान क्षमता से ऊपर रखना, तभी हम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करें। जो अनुशांसित कीटनाशक हैं, देखिए ब्लू बीटल के लिए मेटाडोर नाम की दवा है 1.5 ml प्रति लीटर। गडल बीटल के लिए ट्राइजोफास 800 ml प्रति हेक्टेयर। सेमी लूपर जो मैंने अर्धकुंडलक इल्लीजिल को बोलते हैं उसके लिए क्लोरोपायरिफास। और टोबैको कैटरपिलर मतलब जो तंबाकू की इल्ली है इसके लिए 2-3 दवाइयां बनी है। एंडोक्सिकार्ब है, एबामेक्टिन बेंजोएट। आज की तारीख में वर्तमान में एबामेक्टिन बेंजोएट काफी अच्छी दवा है, एक बार आप छिड़काव कर दें 180 ml पर लीटर। लेकिन किसान भाई ध्यान रहे, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग हमें बहुत ही सावधानी से करना है। हमें जो है आज की जो वर्तमान परिस्थिति इसमें हमें मास्क तो पहनना ही है, हमें सारा क्वारंटाइन जो भी कुछ डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, सारी चीज करके ही हम रासायनिक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। हवा की दिशा में होना चाहिए, हवा की दिशा में, हवा ऐसी चल रही है, अगर हम विपरीत दिशा में करेंगे तो दवा हमारे ऊपर आएगी, हमारे ऊपर उसका विपरीत असर शुरू होगा। कोशिश रहे कि हम मास्क पहने, टोपी पहने, पूरा गाउन पहने, उसके बाद ही हम छिड़काव करें। अभी देखिए, ये हम एक जगह सोयाबीन में हमको दवाई डालना थी, तो मेरे पास ये था, मैंने इसको किया। लेकिन इस तरीके से हमको दवा छिड़कवा के किसान को बताना होगा कि हवा की दिशा में करना है, और उसमें एक जो अंग्रेजी के 8 अक्षर में हमको नली को घुमाना है। अगर 8 अक्षर में घुमाएंगे तो दवा नीचे भी लगेगी, दवा ऊपर भी लगेगी। इस तरीके से हमने आपको दिखाया। अब आती है बीमारी। ठीक है, सोयाबीन में कीट का प्रकोप तो हो ही, लेकिन ये जो बीमारियां जैसे चारकोल रॉट है, कॉलर रॉट है, ये दोनों फफूंदनाशक है। येलो मोज़ेक वायरस, एक और आता है बैक्टीरियल पस्चूल। बैक्टीरियल पस्चूल के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या हमारा जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या वेलिडामाइसिन है, इसका हम छिड़काव करके उसको दूर कर सकते हैं। येलो मोज़ेक वायरस, इसके लिए ये इसका वेक्टर जो है या इसका जो स्रोत है वो सफेद मच्छर है। इसके लिए हम गहरी जुताई करें, बीज उपचार करें, खेत को साफ रखें। उसके बाद कार्बनडाजिम जो हमारा जो अंतर्वाही फफूंदनाशक है उसका छिड़काव करें। और येलो मोज़ेक वायरस के लिए सबसे पहले हमें उसका वेक्टर चेक करना होगा, जो आपका जो सफेद मच्छर है, इसके लिए हमें एजाडायरेक्टिन का पहला छिड़काव करना है। उसके बाद हम एसिटिमाप्रिड का जो है छिड़काव करें। एसिटिमाप्रिड जो है 5 ग्राम प्रति टंकी लेके छिड़काव करें। आगे फिर हमारे पास डाइफेंथुरान है, उसको भी हम छिड़काव कर सकते हैं। ये कॉलर रॉट, चारकोल रॉट और येलो मोज़ेक वायरस, ये जितनी बीमारियां हैं, जिस वर्ष भी अत्यधिक बारिश होती है उस वर्ष सोयाबीन में गडल बिटल आता है। तमिल ऊपर तो आता ही है, दूसरा उसमें टोबैको कैटरपिलर का प्रकोप हो, तो हमें पूर्वानुमान होना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन सा प्रकोप हो रहा है। इसके लिए हमको तकनीकी सलाह लेकर के ही हमें काम करना है, और इस प्रकार हम करेंगे तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे, प्रबंधन कर पाएंगे। जब बीमारी आ जाती है, जब कोई कीट आ जाता है, उसके बाद उसका प्रबंधन करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर हमारे पास रासायनिक कीटनाशकों या रासायनिक फफूंदनाशकों के अलावा कोई भी विकल्प नहीं रहता। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, सोयाबीन को जब उसके चटकने की आवाज शुरू हो जाए, उसको खेत में नमी, उसमें नमी नहीं होना चाहिए। नमी जो है वो कम से कम नमी हो, नमी ही नहीं हो। खेत में सबसे पहले फसल काटने के बाद उसे वही सुखा लेना चाहिए। सुखा लेने के बाद जब हम उसको थ्रेशर में डालेंगे तो उसमें नमी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा नमी हुई तो सोयाबीन बाहर नहीं आएगा, उसका पूरा पूरा सोयाबीन पिस करके बाहर आ जाएगा।
ये हमको बात का बहुत ध्यान रखना है। जब भी हम सोयाबीन को खल में लाएँगे उसके पहले, क्योंकि कुवार का महीना रहता है जब सोयाबीन कटती है, तो उस समय अच्छी धूप पड़ती है और अगर धूप नहीं पड़ी, किसी दुर्भाग्यवश अगर बारिश होती है, तो हम उस सोयाबीन को ऐसी जगह लाके उसको तिरपाल से ढक दें, जिससे कि वो सोयाबीन नमी को न खाए। उत्पादन या उपज, किसान भाई उपज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम ये सारी शस्य क्रियाएँ सोयाबीन में करते हैं, तो 30 से 32 क्विंटल का जो उत्पादन है, वो हम इसकी परिकल्पना करते हैं कि इतना उत्पादन हमारा आना चाहिए। अगर किसान इसके आस-पास भी है विषम परिस्थितियों में, जैसे मेरे किसान थे पिछले साल, विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जो उत्पादन लाया, वो बगैर ड्रिप के उत्पादन से 50% ज़्यादा था। अभी हमारे किसान का एक छोटी-सी स्टोरी है, दिलीप शालिग्राम पाटीदार, फसल सोयाबीन, जानापा कुटी, मेरे 20 एकड़ के किसान हैं। इसके लिए मैं हमारे जो वितरक हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, इनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, मैं 2009 से इस किसान से जुड़ा हूँ और इसने सोयाबीन में हमारे कहने पर 10 एकड़ में 55-60 लगाया, ऊँची बेड पर लगाया। मैं उनकी बोनी से लगाकर आखिरी तक उनके साथ था, लेकिन जब बारिश बहुत शुरू हो गई, उस समय मैं भी हतोत्साहित हो गया और वहाँ पर मैं जा नहीं पाया। उन्होंने 11 साढ़े 11 क्विंटल का उत्पादन लिया। मैंने उनसे पूछा कि दिलीप भाई आपने कितना उत्पादन लिया? बोले सर मेरी 11.5 क्विंटल का उत्पादन आया, लेकिन जो ड्रिप से मैंने नहीं किया उसमें 6 क्विंटल का उत्पादन मैंने लिया और आने वाले समय में वो इसको ही 20 एकड़ में वो सोयाबीन के बाद आलू की तैयारी करते हैं और आलू की तैयारी में वो पूरी बीज उपचार से लेकर के भैंसा बनाने से, जैसे हम किसान का भाषा में कहीं बोला भैंसा, तो भैंसों, जो भैंस के ऊपर पानी डालेंगे दोनों तरफ पानी निकलता है, तो वो क्या करते हैं कि भैंसा बनाते हैं 90 सेंटीमीटर चौड़ा, उसके ऊपर फिर वो आलू की फसल लेते हैं सोयाबीन के बाद। क्यों लेते हैं सोयाबीन के बाद आलू? क्योंकि उसमें फिर नत्रजन, सोयाबीन जमीन में नत्रजन काफ़ी, वो दलहन फसल होने के कारण सोयाबीन की आमदम आलू लेना कारगर होगा। उसके बाद भी मिट्टी परीक्षण कराएँ तो निश्चित रूप से हमें जो उपलब्ध नत्रजन है उसकी मात्रा हमें बढ़ी हुई मिलेगी और इस किसान का जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो ये कृषक का जो नंबर है वो इसमें दिया हुआ है। आप कभी भी उन कृषक से संपर्क करेंगे तो वो आपको निश्चित रूप से इसकी पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। ये उनका हाइब्रिड पद्धति पे सोयाबीन है। आप देख सकते किसान हैं खुद यहाँ पर, इन्होंने रेस बेड पे सोयाबीन लगाई 55-60। बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम किसान भाई, सुरक्षित रहिए और आपको कोई भी जानकारी हो तो हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।